everyone. Today we will start a new activity. Our today's topic is W6 and H1. Maybe you have learned this thing in your school, but whatever you have learned in your school, that is different, and our format is different. So those people who don't know where they have to use this W6 and H1, so please see over this video fully. Now, whatever we have written on the board, now I read it out, so please listen it carefully. How you can develop your spoken English? By formatting the questions for daily routine and on situations with a very useful questions formatted activity, which is W6 and H1. Like, many times we can understand all that things in English, but we can't able to speak and ask anything in English language. So how we can develop our English? We can develop our English by this formatted activity, because in English asking is so important, and for asking we needed questions, and because if we don't have questions, so what we ask? So by this activity we can create our own questions, and we can ask anything in English to other peoples. Now, those people who don't know that what is W6 and H1, so now I tell you. W6 means what, why, which, where, when, who, and H1 means how. And by this we can create our own questions on different situations. Now we will discuss on benefits, like what benefits you get by this activity. So here I written some of the benefits. So now one by one I read it out and I try to explain you. So please listen it carefully. First point is spoken comes out easily. Many times we can understand all that things in English, but when we try to speak, then our words and sentences is not come. So how it is come? It is come by this activity, because when you do this activity and you create your own questions, and when you ask to other people, then your spoken comes out very easily. Let's come on second point. Increasing English folder. You can create your English folder by any activity, but how you can increase it? It's increased by this activity, because by this, when you create your own questions, then that questions going in your folder and your folder will be increased. Let's come on third point. Removing your fear and build confidence. We all have some inner fear of spoken. Whenever we get opportunity to speak something in front of the people, then we can't able to speak because of our fear. But by this activity, when you create your questions and when you ask to anyone, then your fear will be removed and your confidence will be built. So please do these activities nicely, and I hope whatever I try to make you understand, you should follow that and you try to do the practice of it. So please do these activities nicely and try to understand all that things. Now, Bhavna will try to explain you in Hindi. हेलो एवरीवन, आज हम एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है W6 एंड H1। ये एक्टिविटी अल्प इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हो सकता है आपने ये स्कूल में, कॉलेज में सीखा हो, पर आपने जो स्कूल में, कॉलेज में सीखा है वो चीज़ थोड़ी अलग है, और जो हम आपको बताएंगे वो चीज़ थोड़ी अलग है। कई लोग ये नहीं जानते कि इस एक्टिविटी को यूज़ कैसे और कहाँ करना है। तो ये जानने के लिए आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखिए। तो अब जो बोर्ड पर लिखा है मैं आपको उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हाउ यू कैन डेवलप योर स्पोकन इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय मेकिंग फॉर्मेटिंग द क्वेश्चन फॉर डेली रूटीन, वो भी खुद के रोजाना के क्वेश्चन बनाकर, एंड ऑन सिचुएशन विद अ वेरी यूजफुल क्वेश्चन फॉर्मेटेड एक्टिविटी विच इज W6 एंड H1, वो भी अपने खुद के हिसाब से एक क्वेश्चन फॉर्मेटेड
हमारी इंग्लिश इंक्रीज कैसे होगी। अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमारी इंग्लिश इंक्रीज होगी। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी से कुछ पूछना। अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो हमारी जो टंग है वो इंग्लिश में मूव होगी। तो किसी से कुछ पूछने के लिए हमें क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो हम किससे क्या पूछेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगी। तो W6 एंड H1 है क्या। W6 व्हाट क्या, व्हाई क्यों, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, एंड H1 हाउ कैसे। तो अब बात करते हैं कि आपको इस एक्टिविटी से क्या क्या फायदे होंगे। आपने देखा होगा कि अल्पना ने आपको कैसे ये सारे फायदे बताए। तो अब मैं उसी चीज को आपको हिंदी में समझाती हूँ। स्पोकन कम्स आउट इजली। आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। कई बार हमारे शब्द, हमारे वाक्य वो इंग्लिश में बाहर नहीं आ पाते हैं, पर अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमारे वाक्य, हमारे शब्द आसानी से बाहर आएंगे और हम इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे। इंक्रीजिंग इंग्लिश फोल्डर। आपका जो इंग्लिश फोल्डर है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। आप किसी भी एक्टिविटी से अपना इंग्लिश फोल्डर तो बना सकते हैं, लेकिन आप उसे इंक्रीज कैसे करेंगे। तो ये एक्टिविटी आपका जो इंग्लिश फोल्डर है उसे इंक्रीज करेगी। अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जो क्वेश्चन है वो हमारे इंग्लिश फोल्डर में जाएंगे, जिससे हमारी इंग्लिश और ज़्यादा बढ़ेगी। रिमूविंग योर फियर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। आपका जो अंदर का डर है वो खत्म होगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ये एक मेन टॉपिक है। हमें कई बार क्या होता है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं इंग्लिश में, पर हम घबरा जाते हैं कि हम उससे पूछें या नहीं पूछें। अगर हम उससे इंग्लिश में कुछ पूछेंगे तो क्या पता हम गलत बोल दें, और अगर हम गलत बोलेंगे तो सामने वाला हो सकता है हम पर हंसे भी। तो ये सोचकर हम डर जाते हैं। पर अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा अंदर का डर खत्म होगा और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम आसानी से सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको समझाने की कोशिश की वो आप अच्छे से समझे होंगे। तो प्लीज़ इस एक्टिविटी को बार बार करने की कोशिश कीजिए। Okay, bye. Take care. See you in our next continue video of this activity.